Uh, Dear students, good morning. Today we are going to the last portion of chapter 1, Challenges of Nation Building. So this is the last part that we are attending the lecture. So let's start. We have discussed many challenges in this chapter. So this is the last challenge that the government has to face during the time of after the independence. Okay, that was reorganization of state on linguistic basis. So let me start. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way that so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. So now when they started the nation building process, now in that time the formation of the states has to be made, and in that way process they have to go through the drawing of the states on linguistic basis. The boundaries of the state has to be drawn up now, because at the time that there are many states, many small states we have seen on the eve of before independence, and after independence now again they have to draw up the states on different way, different pattern, different size, shape and size, and in that process they has to go through drawing of the states on linguistic basis. Linguistic and cultural plurality has to be kept in mind while drawing up the states. Now let's one more portion. Things, I'm just jumping up because these are not needed. Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. It was also felt that this would draw the attention away from other social and economic challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. So, the framers of the Constitution of India, they have thought that drawing of the states on linguistic basis will be done afterwards. माने ये बाद में करेंगे ये लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस सामने में आया है, डेमोक्रेटिक पैटर्न को अडॉप्ट करना, सोशल एंड इकोनॉमिक जो पैटर्न को मतलब ढालना अपने कंट्री के लिए, किस तरह से करना है, क्या करना है कंट्री में, फिर सिस्टम सब सिस्टम को चालू करना है, मतलब उसको थोरली लेके जाना है. इन दिस प्रोसेस उन्होंने सोचा कि लिंग्विस्टिक बेसिस का जो प्रोसेस है वो बाद में करेंगे, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कुछ इशू हो गया. This decision of national leadership was challenged by the local leaders and people. Protests began in Telugu-speaking areas of old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka. The Vishala Andhra movement, as the movement for separate Andhra was called, demanded that the Telugu-speaking area should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. Nearly all the political forces in the Andhra regions were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. The movement gathered momentum as a result of the central government's vacillation. Poti Siramalu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. तो देखा गया है कि ये बात जो गवर्नमेंट ने बोला कि पोस्टपोनमेंट कर दिया, अभी बाद में करेंगे, ये लोगों ने नहीं माना. सो इट द मूवमेंट स्टार्टेड राइट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश से ये मूवमेंट शुरू हुआ. आंध्र प्रदेश, लाइक दैट टाइम पीपल वर डिमांडेड फॉर सेपरेटिंग ऑफ द स्टेट्स, लाइक मद्रास डिफरेंट होगा, आंध्र प्रदेश डिफरेंट होगा, कर्नाटका, केरला, ऑल विल गो इन डिफरेंट शेप एंड साइज. और उसके साथ उन लोगों ने फिर बोला कि हमें अपना
खुद का लिंग्विस्टिक जो रीजनल जो लैंग्वेज है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट गो थ्रो। तो वो लोग नहीं मान रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखा गया पोटी सीरामालू एक कांग्रेस लीडर है, उन्होंने फास्टिंग कर दिया और 56 डेज के बाद उनका डेथ हो गया। इसके कारण और भी वायलेंस हो गया उस जगह पे, सब सारे एरिया में, स्पेशली आंध्रा रीजन में। और इसके बाद बहुत सारे लोग स्ट्रीट में आ गए, हड़ताल करने लगे, पुलिस फायरिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया। और उसके द्वारा ये सब कंडीशन को देख के फाइनली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया पर सेपरेट आंध्र प्रदेश बना 1952 में। और 1952 में आंध्र प्रदेश बनने के साथ साथ क्या हुआ, देखा गया कि और भी बहुत सारा ये स्टेट बना। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1952 to look to the question of redrawing of the boundaries of states. एक कमीशन बैठाया गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में। और इसके कमीशन के अंडर में ये मतलब बाउंड्री कौन सा स्टेट में कौन सा लैंग्वेज कैसा होगा, बाउंड्री को ड्रॉ करना, ये सब कुछ उस कमीशन के अंडर में किया गया है। सो यहाँ पे कमीशन ऑन इस रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में ये आएगा, मतलब रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। On the basis of the office report, the State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. तो on the before independence हमने देखा बहुत सारा states, खाली प्रिंसली states भी 565 थे, और तो बाद बाकी तो बहुत सारे थे। उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया और बाद का जो इंडिया जो बना, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया बना, वो पूरा स्टेट जो फिर रीऑर्गेनाइज हुआ वो था 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और उसमें सारा अपना रीजनल लैंग्वेज को सेटअप करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और ये जो मैप जो आप देख रहे हो, ये मैप आगे बहुत सा बड़ा मोटा सा मैप था आगे बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में ये सारा स्टेट्स हो गया, और ये स्टेट्स मतलब बहुत सेपरेट सेपरेट स्टेट्स हो गया उस टाइम में। और यूनियन टेरिटरीज का वो दिया गया है यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे। और मैं यहाँ पे और थोड़ा सा पढ़ती हूँ अपने नोट से। ये देखो यहाँ पे लिखा गया रिकमेंडेशन, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बैठाया अंडर फजल अली, यहाँ पे मैंने लिखा एक नाम फजल अली। फजल अली के अंडर में लीडरशिप में एक ये जो कमीशन बैठाया गया, और इस कमीशन में रिकमेंडेशन जो दिया गया वो था प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू कल्चर एंड कम्युनिटेटिव नीड्स ऑफ द कम्युनिटी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। Attention should be paid to the other regional languages besides हिंदी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज भी होगा। द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन शुड गिव यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। यूनिफॉर्म सबका जो भी डिमांड है जो भी है यूनिफॉर्मली जाएगा, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर सब ऑल शुड बी इन यूनिफॉर्म वे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका अपना लैंग्वेज का भी ध्यान देखा जाएगा, जो लोकल डायलेक्ट्स होता है ना इंडिया में, वो सब कुछ। The formation of linguistic states was considered to be democratic, मतलब डेमोक्रेटिकली सब कुछ किया जाएगा। The creation of linguistic states meant the acceptance of principles of diversity, मतलब इंडिया में तो हम लोग बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, फिर डिफरेंट कास्ट क्रीड, फिर लोकल डिफरेंट फिर ट्राइबल डायलेक्ट्स भी है, बहुत सारे कुछ है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए इन लोग को रीजनलिज्म का जो वो है, जो पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट करना है और उसको लेके जाना है। तो दिस इज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये देखो एक पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। इस पिक्चर में ये एक स्टाम्प पिक्चर है, यहाँ पे देखो एक स्टाम्प पिक्चर, ये पोटी सीरामालू जो जिनका डेथ हो गया था। और यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स अपने डिमांड कर रहे हैं, डिमांड डिफरेंट स्टेट्स का अपना डिमांड है, सब अपने मुंह खोल के बैठे हैं। और यहाँ पे कौन बैठा है? जवाहरलाल नेहरू। ही इज़ लाइक अभी मैं क्या करूँ, किसका डिमांड में लूँ, किसका डिमांड में लूँ, किसका क्या करूँ मैं अभी। सो दिस इज जस्ट ए पिक्चर गिवन अप हियर। सो दिस इज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो ये था लास्ट पार्ट स्टूडेंट, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का ये लास्ट पार्ट था। हमने ये पार्ट ख़त्म कर दिया, ये लेसन ख़त्म कर दिया आज। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप लोग तो रिएक्ट नहीं करते हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ रिएक्ट किया करो आप लोग।
ओके, एंड विद दैट आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। हम लोग फिर कल से या परसों से जो भी वीडियो आएगा उसमें नोट्स फास्ट आएगा डिफरेंट चैप्टर का, और उसके बाद नोट्स के साथ साथ वीडियो भी आएगा आपका। ओके, थैंक यू।